أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 137 کمپلیٹ کی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 138 138 انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ، صبغہ، صبغہ کا کیا مطلب ہے؟ صاد با غین، اس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں اور اس کا مطلب ہے کلر، یعنی کہ رنگ، جس کو ہم رنگ کہتے ہیں اردو میں اور انگلش میں ہم کہتے ہیں کلر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی یہ مضاف الیہ ہے. صبغۃ اللہ یعنی اللہ's کلر، اللہ کا رنگ، یا آپ کہیں گے the color of اللہ. کسی کی مائک کھلی ہے؟ نسیم آپ کی مائک کھلی ہے، پلیز بند کر لیجیے، آواز آ رہی ہے. نسیم آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے، آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے. تو صبغۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کلر، اللہ's کلر، یا آپ کہیں the color of اللہ. اور کلر آف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کوئی رنگ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ رنگ کا مطلب ہے the way of اللہ، اللہ کا جو راستہ ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو ریلیجن ہے. یعنی کس چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں؟ اسلام. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دین سکھایا؟ اسلام ہمارے لیے چوز کیا ہے. تو صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو رنگ ہے، وہ کس چیز میں؟ اسلام میں ہے. اردو میں بھی آپ لکھ لیں گے اللہ کا رنگ یا رنگ اللہ کا. صبغہ رنگ ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو اللہ کا رنگ یا رنگ اللہ کا دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ وہ رنگ جو اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا ہے، وہ والا اللہ کا جو رنگ ہے جو اللہ کو پسند ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ اینڈ who، احسنو بیٹر، احسن حسن سے نکلا حاسین نون، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ ہو از بیٹر، اینڈ اور کون بہتر ہے، اور کون بہتر ہے. ومن احسنو من اللہ، دین اللہ، یعنی اللہ سے. تو احسنو کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے گرامیٹیکلی کیا چیز ہے وہ؟ اٹ از اے کمپیریٹیو ناؤن، یعنی اسم تفضیل. 2 اسم میں بتا رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں نا بیڈ گڈ، اور ہم کہتے ہیں گڈ بیٹر اور ورسٹ کہتے ہیں نا، اس طرح کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہی ہے کہ جب اسم تفضیل ہے اس کا مطلب کمپیئر ہو رہا ہے کہ یہ بیٹر ہے. تو کس کا رنگ بہتر ہے؟ whose color is better than اللہ. اب یہ who is better لکھا، ومن احسن من اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب یہ آگے اب آ جائے گا جس سے پتہ چل جائے گا. اور کون ہے بہتر اللہ سے؟ صبغہ. صبغہ اگین ابھی آپ نے پڑھا تھا کلر، تو اس وقت کلر کے بدلے اگر آپ اس کو انگلش میں کہہ رہے ہیں، ان کلر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کلرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں سے آپ جو لکھ سکتے ہیں. اینڈ ہو از بیٹر دین اللہ ان کلرنگ، یا ہو از بیٹر دین اللہ ان کلر. کون ہے اللہ سے بہتر رنگ میں؟ تو اللہ سے بہتر کون ہے، یعنی کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے. اگر آپ اور اس کو کلیئر الفاظ میں لکھنا چاہیں، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کسی کا بھی رنگ نہیں ہے. اچھا، اینڈ میں جا کے صبغہ پھر لکھا ہوا آ گیا. اس صبغہ کی ضرورت تو نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رنگ کی بات کر رہے ہیں اور کون اللہ سے بہتر ہے. لیکن جب صبغہ دوبارہ سے آ گیا، میں نے آپ کو سکھایا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمییز. تمییز یعنی فردر کلیریفیکیشن کے لیے، زیادہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو یہ تمییز جو ہے سیکنڈ ٹائم یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ اینڈ وی، اور ہم، لہو ٹو ہم یا فار ہم، یعنی اس کی یا اس کے لیے کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ اینڈ وی فار ہم یا ٹو ہم، عابدون are slaves، we are slaves یا we are worshippers. دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عابد کا مطلب slave بھی ہے اور عابد کا مطلب worshipper بھی، عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے، عبادت کرنے والا عابد. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ and we to him یا for him are slaves یا are worshippers. اردو میں کہیں گے اور ہم اس کی یا اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو تفسیر اس کی دیکھتے ہیں. the color of اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں who is better than Allah in coloring. اس آیت کو 2 قسم سے، اور بھی ہوں گی ٹرانسلیشنز، لیکن نارملی 2 قسم سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ ان 2 ways. نمبر 1 ٹرانسلیشن یہ لائک اے اسٹیٹمنٹ،
यानी हमने अल्लाह का कलर ले लिया, वी हैव टेकन ऑन द कलर ऑफ अल्लाह, हमने अल्लाह का कलर ले लिया, और अल्लाह के कलर से कौन सा बेहतर होगा, ठीक है, हमने अल्लाह का कलर ले लिया, इसका मतलब ये है कि सिबगत अल्लाह हमने ले लिया, ठीक है ना। अब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन या इसकी तफसीर में ये है। दूसरा इसका जो है इसकी दूसरी जो तफसीर है या ट्रांसलेशन है, उसमें ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक कमांड दे रहे हैं, इट्स अ हुक्म, टेक ऑन द कलर ऑफ अल्लाह। सिबगत अल्लाह खाली लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि आप ये ले लो या आपका ये है या हमने ले लिया। लेकिन इसका ट्रांसलेशन दो किस्म से होता है कि या तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं हमने अल्लाह का रंग ले लिया, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का रंग ले लो। तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसमें इस आयत में जो है एक रिचुअल की तरफ पॉइंट हुआ है। एक रिचुअल यानी एक ऐसा कस्टम था, समझ ले, कस्टम था जो कि जूस किया करते थे। जू बनता था उसको वो लोग एक गुसल दिया करते थे, एक बात दिया करते थे। फिर उसके बाद ये इससे क्या होता था, वो ये कहते थे कि इसके पिछले सब गुनाह माफ हो गए, इसके गुनाह वॉश हो गए बिल्कुल, अब इसकी जिंदगी में एक नया कलर आ गया है, जिस तरह हम कहते हैं नया खौल आ गया, एक नया कलर आ गया, यानी अब ही विल लीड अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, अब इसकी जिंदगी जो है एक डिफरेंट तरीके से गुजरेगी। इस प्रैक्टिस को, इस कस्टम को पहले यहूदी करते थे, फिर इसको क्रिश्चियंस ने भी, ईसाइयों ने भी इसको अपना लिया, और इसको क्या कहने लगे, हम सब अभी जानते हैं, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब ये कि वो इनका जो नहाना है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट्स होते हैं, यानी जो कन्वर्ट होता है उसको भी बैप्टाइज करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नया बच्चा पैदा होता है, हम तो बच्चे को गुसल देते हैं, लेकिन उनका गुसल जो होता है, वो बैप्टिज्म जो होता है, वो डिफरेंट किस्म का होता है। वो कहते हैं अब ये यहूदी, अब ये ईसाई बन गया, ठीक है, इस तरह से उनका होता है। अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं उन लोगों को, इस रिचुअल बात की क्या जरूरत है, इस कस्टम की क्या जरूरत है, ये जो तुम लोग फॉर्मल बैप्टिज्म करते हो इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो क्या, आप अल्लाह का रंग अडॉप्ट कर लो, द वे ऑफ अल्लाह आप अडॉप्ट कर लो। इट मीन्स के पानी आपको साफ नहीं करेगा, पानी आपके गुनाहों को नहीं धोएगा, और पानी किसी एक रंग से दूसरे रंग पे नहीं चढ़ाएगा आपको। इट इज द एक्चुअल सर्विस, आपकी जो एक्चुअल डिवोशन है अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन को अपनाने में, वो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी दीन इस्लाम में दाखिल होता है और सिंसियरली दाखिल होता है, वो शहादा लेता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। समझ गए? इससे ये समझ में आ गई बात कि इन लोगों की जो रिचुअल्स हैं वो अल्लाह के नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आया नंबर 139, कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। तब अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल, यानी आप कह दीजिए, से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं आप कह दीजिए कि अतुहाज्जूनना, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तुहाजू यानी आप मुझसे हुज्जत करते हैं, मुझसे आर्ग्यू करते हैं, आप आर्ग्यू, अतुहाजू आप एक्चुअली अतुहाजू ना है, ठीक है ना, अतुहाजू ना नना, जब नना आ गया उसका मतलब है हमारे साथ, कि आप क्यों हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं। और इसके रूट लेटर्स हैं हा जीम जीम, हा जीम, जैसे हुज्जत हम कहते हैं ना, आर्ग्यू करना, किसी के साथ डिस्प्यूट करना, किसी के साथ झगड़ना। तो इसके क्या आप कहेंगे पास्ट टेंस में हाजा, युहाजु, मुहाजतुन, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 3, हाजा युहाजु मुहाजतुन। इसका मतलब है किसी से आर्ग्यू करना, डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना। तो कह रहे हैं डू यू आर्ग्यू विद अस अतुहाजुनना, आप हमसे आर्ग्यू करते हैं क्या, तुम हमसे झगड़ते हो, किस चीज के बारे में, फिल्लाह यानी अल्लाह के बारे में, अबाउट अल्लाह, अल्लाह के बारे में आप हमसे आर्ग्यू करते हैं। और फिर आगे क्या, वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी रब है और आपका भी रब है। ऑल्दो, ये वह जो है ना, ये वह ऑल्दो का मतलब है, हालांकि ये वह नहीं है, एंड नहीं है, इसका मतलब है ऑल्दो रब्बुना, ही इज आवर रब, व रब्बुकुम, एंड ही इज योर रब,
वहुवा रब्बुना, और वो हमारा रब है, हालांकि वो हमारा रब है और वो आपका भी रब है। इसमें आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है। और आगे फिर और भी क्लैरिफाई कर दिया, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, वही ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये वही चीज है बस। वलना, एंड फॉर अस आर आवर डीड्स, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम, और आपके लिए, एंड फॉर यू आर आमालुकुम योर डीड्स, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और आपके लिए आपके अमाल हैं। फिर वनहनु लहू मुखलिसून, पहले आया था आबिदून, अब आ गया मुखलिसून। मुखलिसून का क्या मतलब है, ख लाम साद से है, जिसका मतलब ये है इखलास, जो हम कहते हैं ना सिंसियर होना, सिंसियरिटी, तो मुखलिस होना। तो वनहनु लहू मुखलिसून का मतलब है एंड वी टू हिम आर सिंसियर, और हम उसी के लिए मुखलिस हैं, और हम उसी की खालिस इबादत करने वाले हैं। और इसका मस्दर क्या है, मुखलिस सिंगुलर है, मस्दर क्या है, इखलास। मुखलिसून प्लूरल है, मुखलिस सिंगुलर है, मस्दर क्या है, इखलास। अब इसकी थोड़ी सी तफसीर है। ये अगेन, ये जो मुखलिसून का लफ्ज आ जाता है ना, खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले, ये किस चीज के बारे में होता है। अगेन आप याद रखें कि पूरे कुरान में सबसे ज्यादा मैसेज किस चीज का है, तौहीद का है, अल्लाह की वहदानियत का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम जो फॉलोअर्स थे, उनके तमाम जो सहाबा थे और तमाम फॉलोअर्स थे, वो एक ही प्रिंसिपल के लिए खड़े होते थे कि सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और अनकंडीशनली अल्लाह को ओबे करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हमें मालूम हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या अप्रूव किया है या किया है, ये हदीस ऑथेंटिक है, तो अल्लाह ताला मुसलमानों को बता रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह ताला कि आप जूस को और क्रिश्चियंस को ये कह दीजिए कि आप अल्लाह के बारे में हमसे क्यों लड़ रहे हो, लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, देयर इज नथिंग टू डिस्प्यूट, हमारा रब भी वो है, आपका रब भी वो है, हमें हमारे अमाल का की जजा दी जाएगी, आपको अपने अमाल की। लेकिन फिर ये कह दिया हम अपनी इबादत में, हम अपनी वर्शिप में सिंसियर हैं सिर्फ अल्लाह के। इसका मतलब ये कि हम अपनी रिलीजन में किसी और रिलीजन को मिक्स नहीं करेंगे। आपको पता है वो ये भी कहते थे ना, मुशरिकीन मक्का ने एक दफा कहा कि एक साल आप हमारी रब की इबादत करें, एक से वही जो लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। तो इसीलिए अब ये बता रहे हैं कि हमारा जो दीन है ना, इट्स खालिस फॉर अल्लाह, प्योर फॉर अल्लाह। इसमें ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा ये चीज हम क्रिश्चियनिटी से ले लेंगे, ये चीज हम जुडाइज्म से ले लेंगे, ये चीज हमने हिंदुइज्म से ले ली, ये चीज हमें बुद्धिज्म की अच्छी लगी तो हम ये चीजें नहीं। अल्लाह का रिलीजन जिस तरह अल्लाह ने बनाया वो बस खालिस है, वो प्योर है, वो मुकम्मल है बिल्कुल। तो कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी, चाहे हमारे फैमिली कर रही हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स कर रहे हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं जो दीन में नहीं है, तो वो हमको अडॉप्ट नहीं करना इन आवर दीन। हमारे दीन में हमें सिर्फ अल्लाह के लिए लॉयल होना है और खालिस होना है, और सिर्फ वो करना है जो अल्लाह का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कहा या किया या अप्रूव किया। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 140। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन अव नसारा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तो अम तक़ूलूना, अम का मतलब, अम तक़ूलूना का एक्चुअली मतलब है डू यू से, यानी प्लूरल में, क्या आप लोग कहते हैं, क्या आप लोग कहते हैं, डू यू से, या आप लोग ये कहते हैं, क्या आप लोग ये कहते हैं, इन्ना के बेशक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इन सब के बारे में आप ये कहते हैं। वल अस्बात, अस्बात हमने उस दिन भी पढ़ा था, सिब्त यानी कि डिसेंडेंट्स या उनकी औलाद या उनकी औलाद की औलाद, और सिंगुलर इसका है सिब्तुन। तो ये तमाम पैगंबर और फिर इनकी औलादें, कानू देवर यानी वो थे, हुदन और नसारा, या वो यहूदी थे या वो नसारा थे, यानी या वो ईसाई थे। यानी क्या आप ये कहते हैं, क्या आप लोग ये कहते हैं। फिर पूछते हैं, आप सवाल पूछो, कुल उनसे कह दीजिए, अंतुम आलमु अमिल्लाह, कि उनसे पूछो कि आर यू मोर नॉलेजेबल, आलमो जिस तरह अभी अहसनो पढ़ा था इसम तफदील, इसी तरह ये भी कंपैरेटिव नाउन है, इसम तफदील आलमो, क्या आप इल्म में उनसे ज्यादा हैं, क्या आप उनसे ज्यादा इल्म वाले हैं। आर यू मोर नॉलेजेबल, तो आप उनसे कह दीजिए क्या आप इल्म, क्या उनसे ज्यादा इल्म वाले किससे, यानी सबसे ज्यादा इल्म वाले आप हैं या अमिल्लाह और अल्लाह, या कि अल्लाह, क्या आप अल्लाह से ज्यादा जानते हैं, मतलब ये है ना कि आप अल्लाह से ज्यादा जानते हैं।
تو پھر آگے کہہ رہے ہیں پھر ومن اظلم ممن کتم شہادتن، ومن اینڈ ہو از، اور کون ہے اظلم، یہ اظلم اگین اسم تفضیل آ گیا، یعنی کون زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، who is more unjust, who is more unfair، ممن، من اور من دو لفظ ہیں، than the one who، من کا مطلب ہے than اور من کا مطلب ہے the one who، یعنی اس سے جس نے، کون اس سے زیادہ ظالم ہے جس نے کتما، کتما یکتمو کتمانون، پہلے آپ پڑھ چکے کا تامیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا، ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو کتما شہادتن، جو کہ شہادت کو، جو کہ ٹیسٹیمنی کو، جو کہ ایویڈنس کو، جو کہ گواہی کو چھپا دی، یعنی جس نے ایک گواہی کو چھپا دی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، عندہ من اللہ، جو کہ اس کے پاس، عندہ یعنی اس کے پاس ہے، اس کے پاس گواہی ہے، اس کے پاس شہادت ہے، اس کے پاس ایویڈنس ہے، ٹیسٹیمنی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ جو کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اس ٹیسٹیمنی کو چھپا دیا، تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے، with him یعنی عندہ من اللہ، with him یعنی that he had with him from اللہ، اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی وہ شہادت، وَمَا اللَّهُ and not، یہ ما جو ہے یہ کیا ما ہے، یہ نافیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے and not is اللہ، اور اللہ نہیں ہے، اور نہیں ہے اللہ، اگر آپ اسی سیکوینس میں دیکھنا چاہیں، اور نہیں ہے اللہ بغافلین یعنی غافل، اور انگلش میں کہیں گے unaware، and Allah is not unaware of amma ta'malun، amma an اور ma about what، an ہے about، ma means what یعنی اس سے جو تعملون آپ عمل کرتے ہیں یا آپ جو کرتے ہیں، what you do، ٹھیک ہے نا، جو آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، عملہ وہی ہے، عملہ یعملو عملاً، to do یا عمل کرنا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں اس آیت کو ایڈریس کرنے سے، کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اب یہ کامن جو جوز اینڈ کرسچنز تھے، یعنی جو سمپل پیپل، سمپل اگنورنٹ پیپل امنگ دیم، یعنی ان کے ریبائز اور ان کے پریسٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو تو آلریڈی کہہ دیا، اب ان کو کہہ رہے ہیں سمپل لوگوں کو، جن کو ان کے ریبائز اور پریسٹ نے یہ ان کو دے میڈ دیم بلیو کہ جتنے بھی پروفٹس پہلے آئے تھے وہ سب ان کے ریلیجس گروپ کو بلانگ کرتے تھے، یہ ان کو انہوں نے ایسا چکما دیا شہادت چھپا کے اللہ کی طرف سے، اور کہا کہ تمام جو بھی پیغمبر ہیں وہ سب آپ ہی کے ریلیجس گروپ کو، ہماری ریلیجس گروپ کو بلانگ کرتے تھے، آلدو ان کو پتا تھا، یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں، آلدو ان کو پتا تھا، وہ ریبائز جو ہیں، وہ پریسٹ جو ہیں، ان کو پتا تھا، اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی جو ہے وہ اپنی جو ایگزسٹنگ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ جو آئی ہیں، پہلے وہ جس طرح سے تھی، لیکن بعد میں جو ایمرج ہوئی ہیں یہ لیٹر پیریڈ میں آئی ہیں، ہسٹری کے بہت بعد کے ایک بہت دیر میں آئی ہیں، تو اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی ریلیجس کمیونٹی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور باقی تمام رسول جو ہیں کس کو بلانگ کرتے تھے، وہ اوائڈ کرتے تھے کوئی جواب دینا، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں کہ they were not مشرکین، اور وہ صرف مسلم تھے، تو اسی لیے وہ لوگ اس آنسر کو دینے سے they were kind of وہ اجتناب کرتے تھے، اوائڈ کرتے تھے، بیکاز وہ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جو پیغمبر اور وہ جو رسول آئے تھے، وہ جو نبی آئے تھے، وہ انہی کے سیکٹ کو بلانگ کرتے تھے، وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے، کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے، ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے تھے، اور آن دی ادر ہینڈ اس کو اوپنلی ڈینائی بھی نہیں کر سکتے تھے، اگر اوپنلی ڈینائی کر دیتے اس کا مطلب یہ ہوتا وہ خود ہی شور نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ ہیں، کون سے دین پہ ہیں، کہ صرف وہی سچائی پر ہیں، مطلب وہ خود جب تک وہ ان کو یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس سوال کے جواب کو وہ اوائڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرٹیسائز کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آپ کو زیادہ معلوم ہے، کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ علم والا ہے یا آپ اس سے زیادہ علم والے ہیں، اللہ کا بیسٹ نالج ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم کو کہ وہ نہ تو جوز تھے نہ وہ کرسچنز تھے، آف کورس وہ اس کا جواب تو نہیں دے پاتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اٹس اے ریٹوریکل کوسچن جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے پوچھ کے تو دیکھیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں تم زیادہ علم والے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم والے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب دونوں جوز اور کرسچنز دونوں کو پتا تھا، وہ جواب نہیں دیتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے جو پروفٹس تھے جو
पहले आए थे वो इनकी फेथ से बहुत पहले आ गए थे, और खुद उनके अपने स्क्रिप्चर्स में, उनके अपनी किताबों में क्लियर स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि एक प्रॉफिट आएंगे और एक मैसेज लेके आएंगे और वो ट्रू इब्राहिमिक फेथ पे होंगे, प्योर तौहीद पे होंगे, लेकिन डिलिबरेटली उन्होंने इसको कंसील कर दिया, उन्होंने इसको हाइड कर दिया, उन्होंने इसको छुपा दिया इस एविडेंस को। आपको पता ना गॉस्पेल्स की भी हैं, गॉस्पेल ऑफ बारनबास और ये सब बुक्स हैं जिसको उन्होंने छुपा दी, कहते हैं हम इसको नहीं पढ़ते। इसी तरह हिंदुओं में भी जो किताब है उसको उन्होंने पुराना या कोई उसका नाम था उसको भी उन्होंने छुपा दिया, और इस पे गॉस्पेल ऑफ बारनबास में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, और ये भी इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि एक आएगा कोई आएगा, एक प्रॉफिट आएगा और वो बात करेगा, मुंह में जुबान, वो क्या, ही विल पुट वर्ड्स इन योर माउथ, इस तरह करके कुछ था ना। तो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, लेकिन इन लोगों ने उसको छुपा दिया और इसको नहीं एक्सेप्ट करने लगे। आखिरी आयत है आज हमारी ये सूरह की नहीं, जुज की आखिरी आयत है। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। अगर आपको याद है तो हमने शायद लास्ट वीक या उससे पहले हमने एग्जैक्टली यही आयत पढ़ी थी, आया नंबर हमने पढ़ी थी एग्जैक्टली यही थी, दोबारा से ये आ गई है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने के बदले क्विकली कर लेते हैं। तिलका उम्मतुन क़द खलत, दैट वाज अ नेशन, दैट वाज अ कम्युनिटी, वो एक उम्मत थी, यानी तिलका यानी इस्मुल इशारा है मुअन्नस बईद के लिए कि वो एक उम्मत थी, क़द खलत सर्टेनली इट पास्ड अवे, यकीनन वो गुजर गई है, लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, याद है हमने कसबा पे भी बहुत लंबा चौड़ा इस पे डिस्कस किया था, उसके लिए है जो उसने कमाया उस उम्मत ने, वलकुम मा कसबतुम, और आपके लिए है जो आपने कमाया, वला तुसअलुन्ना, और नहीं आप सवाल किए जाएंगे, नहीं आपसे सवाल किया जाएगा, एंड नॉट यू विल बी आस्क्ड, यानी ये क्या है देखें आप, इसमें बताया था पहले भी, मुदारे मजहूल है, ये मुदारे मजहूल मनफी जमा मुजक्कर, ठीक है ना, अम्मा कानू यामलून, अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू डू, उन्होंने जो किया आपसे सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल करते थे। तो ये एग्जैक्टली आया नंबर कौन सी थी, आया नंबर 34 थी, 134 थी इससे पहले, और ये अब कौन सी है 141। अल्लाह ताला रिपीट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, इतनी थोड़ी सी आयतों के बाद दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे आबा अजदाद ने किया, जो कुछ हमारे फोर फादर्स ने किया, वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, हम अपनी डीड्स के लिए खुद अकाउंटेबल होंगे, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के लिए जवाब नहीं देगा, इसलिए हमें खुद अपने अकीदे को करेक्ट करना है, हमें खुद अपने अमाल को ठीक करना है, किसी पर डिपेंड नहीं करना है, चाहे हमारे आबा अजदाद में कोई बुजुर्ग थे, कोई पीर थे, जो भी थे, कोई बहुत नेक आदमी थे, कोई भी हमें उन पर डिपेंड नहीं करना है, हमने अपने अमाल ठीक करने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा पहला जुज खत्म हो गया, काफी देर लग गई खत्म होने में, लेकिन हमेशा ये होता है शुरू में कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे क्या सारे ही वर्ड तकरीबन नए होते हैं, अब जबकि हम बहुत सारे वर्ड से फेमिलियर हो गए, इंशाल्लाह अब जब हम आगे जुज 2 में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ट्यूसडे को कहा था कि आज आप लोग थोड़ा सा अगर एक चीज अपने लिए तैयार करके आए कि आप क्लास से अगर कुछ शेयर करना चाहें कि इस एक जुज में आपको क्या चीज याद है जो आपने पढ़ा या आपने सीखा, जो भी चीज आप में से कोई भी जो शुरू करना चाहे, मैं यहाँ नाम देखती हूँ कौन अपना माइक खोलेगा, वही सबसे पहले अपना शेयर कर लेगा। यस सईदा बताइए। हाँ, इस जुज में बहुत सारी चीजें हैं, समझे एक तरीके से तो देखा जाए तो अगर हम इसी एक पारे को पढ़ लें तो समझे हमें बहुत कुछ अल्लाह ताला ने इसमें बताया है, लेकिन एक चीज इसके अंदर हाँ, इसके अंदर एक चीज इसके अंदर हाँ, इसमें जो शुरू में जो है आयतें हैं, पहली दूसरी और तीसरी जो आयतें हैं इस कुरान की, मतलब सूरह बकरा की, उसमें अल्लाह ताला ने 3 फिरकों के बारे में बताया है। पहला तो ये है कि मुस्लिम हम लोग हैं, दूसरा फिरका जो है मुशरिकीन के बारे में बताया है, और तीसरा फिर उन्होंने डिटेल से मुनाफिकीन के बारे में बताया है। मुस्लिम तो वो हैं जो अल्लाह पे और उसकी किताबों पे जो हम लोग हैं जो ईमान लाते हैं, और उसके बाद जो मुशरिकीन वो थे जो कि मक्का के थे और जो कि आजकल भी जो कि बुतों को पूजते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, इतनी मानते हैं बल्कि उनको बुतों की काफिर पूजा करते हैं। कहते हैं, अगर आप मुशरिकीन के बदले इस वक्त आप ये कहें कि काफिर,
अल्लाह अच्छा, ताला ने वो लफ्ज़ कुफर यूज किया ना, हाँ काफिर, तो वो लोग काफिर थे। सवाउन अलैहिम अअंज़रतुम, तो कफरू का लफ्ज़ यूज किया, जो कुफर करते हैं, और कुफर में सिर्फ मुशरिकीन नहीं है, क्योंकि हाँ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे लिए जो जूस हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, और सब ये सब के सब अहले किताब है, लेकिन फिर भी ये कुफर करते हैं, तो इसलिए मुशरिक हाँ पहले कुफर करना। जी, 3 किस्म की चीजें बताई 3 हैं। हो गए, हाँ। और और भी बताऊं? नहीं नहीं, तो फिर यह है कि सेकंड कौन है? जी मैं आरफा। जी आरफा बोलें। जी देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो बता दिया 3 वो हो गए, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है इसमें, और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा की आमद का जिक्र है कि किस तरह से वो उन्होंने फरिश्तों से कहा कि हम जमीन पे अपना खलीफा बना के भेजना चाह रहे हैं, तो ठीक है, फरिश्तों ने कहा कि आप उनको कैसे खलीफा बनाएंगे, वो पूरी तफसील उसके बारे में हमें पता चली कि वो उनको नाम सिखाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और कोई बताएं, कौन बताएगा? आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। फिर हाँ, बात जो अल्लाह ताला ने जूस के बारे में बताया कि वो कितने फसाद करने वाली कौम थी और अल्लाह के नाफरमान थी, और वार्न किया रसूलुल्लाह को कि इनसे इनसे बच के रहें। और काफी लंबा अकाउंट जो है जूस का, आपने नोटिस किया, काफी लंबा, कई आयतें उसी पे, जूस और क्रिश्चियंस की हैं, बनी इसराइल की हैं, बहुत सारी हैं। और कोई अब नेक्स्ट, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? मैं बात कर सकता? हाँ हिना बोलिए। इसमें सबसे खूबसूरत आयत जो है फर्स्ट पारे में है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए है। इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो जब अल्लाह ने सबमिट करने का बोला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इसने बोला कि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ कि पूरे जहां का मालिक पे। तो ये सबसे खूबसूरत आयत है। नेक्स्ट कौन जाने वाला? हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? इसमें ये बताया ना, रब्बाना वबअथ फीहिम, आपके पास रसूल आएगा जो आपको आयत पढ़ के सुनाएगा। तो हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इसमें पहले ही बता चुके, पहले ही जो आया, और वो क्यों आया, किसकी दुआ से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि आप जो है यह ऐसे भेजे मैसेंजर, इन्हीं में से, हम ही में से जो आए और जो इन लोगों को आपकी आयत पढ़ के सुनाए, इल्म सिखाए और तज़किया करे इनका। जी बहुत अच्छा अस्मा। और नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए शमीम। मुझे वो सारा का सारा सूरा, आपकी तमाम सारा लेक्चर वाज लाइक वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन मुझे जो सब में ज़्यादा वो लगा ये कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जा रहा था, तो देन देयर वाज दिस आया दैट सेड के whenever should some guidance come to you from me, those who follow my guidance shall have no fear, nor shall they grieve. तो ये आयत मुझे बहुत ही अमन तबिया खुदा है, बिल्कुल वेरी गुड वन। और ये हम लोग को सारी उम्र के लिए याद रखनी चीजें ना, जो भी चीजें हैं। Who goes next? बताएं। I can go next, but I will say in English. जी. Okay. First of all, we started off with Surah Fatiha. And in there, we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his guidance in all the matters of our lives. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us on straight path. And we say that about 17 times or something like that in the prayers every day. And then we also have to remember to say Ameen after we read Surah Fatiha. Very good. And then like the sister said, of course, the first part starts off with making the, dividing the people into three. Actually, the first part doesn't start like the first part. Like, so thank you, Farad, for bringing up Surah Fatiha, because I was waiting कि Surah Fatiha कोई बोल नहीं रहा है. Yeah. दिमाग में आ रहा है ना, लेकिन मैंने बकरा नहीं, मैंने जुज बोला था. तो थैंक यू. तो सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हमको दुआ का तरीका भी बता दिया, अल्लाह की तारीफ करना, फिर अल्लाह से ही मांगना और हिदायत मांगना. और फिर ये भी कहा ना कि सिर्फ हिदायत नहीं, अल्लाह जिन पे आपने इनाम किया, करम किया, उन लोगों के रास्ते पर चला. सो वी आर आस्किंग फॉर द स्ट्रेट पाथ, सिरात मुस्तकीम हम मांग रहे. सो व्हेन सूरह बकरा स्टार्ट्स, इट डजंट स्टार्ट विद द कि भाई ये 3 किस्म के लोग हैं. इट स्टार्ट्स विद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम. Yeah. So this is the book of guidance. It gives articles of faith, belief in Allah, prophethood, and life after death.
then it divides everybody into three. Right. और साथ साथ ये भी बताया कि कौन हिदायत पा सकेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हमें हिदायत लेने का तरीका भी अल्लाह बता रहे हैं, दुआ का तरीका. तो नंबर 1 इज कि हमने इसमें इस जुज़ में दुआ के तरीका सीखा. नंबर 2 अल्लाह ताला ने बताया कि अगर आप मुत्तकी नहीं होगे आप पे कोई असर नहीं होगा आप. फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने किस्म के लोग बताए कौन इससे फायदा उठा रहा है, कौन फायदा नहीं उठा रहा है, कौन बिलीवर्स है, कौन डिसबिलीवर्स है, और तीसरा कौन मुनाफिक है. और मुनाफिकों की फिर काफी अल्लाह ने पहचान बताई. Who wants to go next? फरत आप कुछ और बोल रही थी, रुक गई. Yeah, I was just gonna say that then this just this surah takes the name after the cow, which is mentioned later in the yes. story about the cow. ठीक है. और कौन रह गया? सईदा, फरहत, शमीम हो गई, अस्मा हो गई. महनाज बोलोगी? नसीम आपने नहीं शेयर किया. नसीम रह गई है. महनाज हाँ. I would just say basically our entire religion, our entire Islam is in this surah, is in just whoever जो भी ये सूरह बकरा पढ़ लेगा, basically all our laws, our religion, our any proof of Allah, any misguidance, any doubts, everything goes away once you do surah Baqarah. हाँ, और अभी तो बकरा पूरी पढ़ी नहीं, अभी तो हमने सिर्फ एक जुज़ पढ़ा, लेकिन कितना कुछ हमने पढ़ लिया. ये आदम अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया, शैतान ने किस तरह बहकाया वो पढ़ लिया, जन्नत में से निकाले गए वो पढ़ लिया, हिदायत के आने का पढ़ लिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया. और फिर ये जो डिसेप्शंस हैं और जूस ने किया, इसने किया, वो सब कुछ कितना उन्होंने कंसील किया, वो सब चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली. नसीम आप रह गए एक, मेरा ख्याल है कुछ बोलेंगी? अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है माशाल्लाह, तो हम ऐसे करते हैं कि हम नेक्स्ट आया पे जाते हैं, जूस 2 को स्टार्ट करते हैं. बट जस्ट बिफोर वी कुड डू दैट, हमने चूंकि फर्स्ट जूस ऑफ कुरान खत्म कर लिया, हमने थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी कर दी है. थोड़ा सा और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि रिफ्लेक्ट, आज क्लास में नहीं, वी शुड ऑल रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन कंडीशन. अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन पे हम थोड़ा सा घर पे जाके आराम से रिफ्लेक्ट करके सोचें कि क्या इज माई हार्ट चेंजिंग आफ्टर स्टडिंग द बुक ऑफ अल्लाह. ये क्वेश्चन आप अपने लिए लिख लें. इज माई हार्ट चेंजिंग? लग तो रहा है कि जो मुझसे बात कर रहे हैं सबसे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, आप लोगों को फील हो रहा है कि यस आवर हार्ट इज चेंजिंग. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप लिखें जरूरी, आप ये देखें कि आफ्टर स्टडिंग दिस ओनली वन जुज़ ऑफ द बुक ऑफ अल्लाह, लाइक अभी महनाज ने भी कहा कि इज माई हार्ट चेंजिंग, अपना पूछें. और अगर आपका जवाब है यस माई हार्ट इज चेंजिंग, तो आप आगे लिखें हाउ मच, पहले मैं कैसे थी, इसके पढ़ने के शुरू होने के बाद क्या हुआ. थोड़ा सा अपने आप को मुहासिबा कर लें, समझ लें. और अगर मेरा हार्ट चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो ऐसा होगा जो कि इसको सुन रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा, लेकिन उसका हार्ट चेंज नहीं हो रहा है. अल्लाह ताला ने क्या बताया? डिफरेंट किस्म के रॉक्स के बारे में, डिफरेंट किस्म के हार्ट्स के बारे में भी, ये भी हमने इसी जुज़ में पढ़ा था कि किसी के अंदर से पानी निकल आता है, कोई जो खौफ से गिर जाता है. तो अलग अलग किस्म के हार्ट्स हैं, किसी पे असर होता है, किसी पे नहीं असर होता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा. सेकंड क्वेश्चन, और ये आप अपने लिए खुद करेंगे, अपने लिए, हार्ट चेंजिंग का, इफ यस हाउ मच, इफ नॉट देन व्हाई नॉट. नंबर 2, एम आई लर्निंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम? ये भी आपने अपने आप को सवाल पूछना है. एंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम. अभी आपने बताया कि हिना ने शायद कहा, किसने बोला कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अस्लिम, तो उन्होंने कहा अस्लम तू, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड. सो व्हाट डज इट मीन? अगर ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम है क्या? इज इट तौहीद है, इसमें सबमिट करना है, सरेंडर करना है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना है, फैमिली को छोड़ना है. फैमिली को छोड़ना नहीं है, फैमिली के कल्चरल प्रैक्टिसेस को, इफ दे आर नॉट इन लाइन विद इस्लाम. तो ये सब चीजें, एम आई लर्निंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम, ये आप अपने जवाब में खुद ही लिखें. मुझे आपने बताना नहीं है, आप खुद ही अपने लिए लिखें. इफ यू डोंट वांट टू, इट्स ओके, आई एम जस्ट गिविंग लाइक पॉइंटर्स के ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा इफ यू डू दिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट जूस. नंबर 3 है, एम आई अंडरस्टैंडिंग द स्टेटस एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह? अल्लाह के हम नाम पढ़ रहे हैं और अल्लाह के हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं अल्लाह की, तो क्या उसमें जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं कि अल्लाह का स्टेटस कितना है? आई एम श्योर शमीम कैन गो ऑन इन दिस वन. शमीम को बहुत, उन्होंने मुझे जब लिखती भी हैं तो यही लिखती हैं कि कितना एहसास होता है हमें कि अल्लाह का स्टेटस क्या है. पहले तो हमें पता ही था, ये तो नहीं कि नहीं पता था, बट नाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर
कि अल्लाह का रब होना, एक अल्लाह का तव्वाब होना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। अल्लाह का रहीम होना, अलीम होना, समीअ होना, बसीर होना। तो क्या हम अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के सिफात और अल्लाह के स्टेटस को हम बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? नंबर 4 मेरा है कि आप ये देखें कि क्या इन सब को पढ़ने के बाद मेरे दिल में या आपके दिल में अल्लाह का लव, अल्लाह की मोहब्बत और तकवा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर 5 कि मैं अब ये पढ़ने के साथ साथ, पहले भी होंगे लेकिन अभी भी होंगे, लेकिन अब अपने आप को सोचना है, एम आई सिंसियर टू अल्लाह अलोन? जैसे हम कहते हैं मुखलिसीन, अब हम मुखलिसीन हैं, हम मुखलिस हैं कि नहीं, या कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर इमाम, किसी एक पर्टिकुलर टीचर जिसको हम फॉलो करते हैं, क्या हम उसी तरफ हैं या हम चेंज हो रहे हैं? हम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि भाई मैंने तो ये सीखा था, मेरे माँ बाप ने ये कहा था, मेरे घरों ने ये कहा था, मेरे इमाम ने ये कहा था, क्या हम वही कर रहे हैं अभी तक, या कि हम चेंज हो रहे हैं? Am I sincere only to Allah or sincere to any particular group or person? Number 6 and number last, am I such a person that अपने आप को देखना है कि जब when people speak with me or they look at me, they are reminded of Allah subhanahu wa ta'ala? ये सवाल मुझे बहुत खूबसूरत कहीं से मिला, मुझे बहुत पसंद आया। नॉर्मली मैं ना किसी को बोलती हूँ ये सवाल, ना मैं करती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं आप मुझे देख रही हैं या आप मुझसे बात कर रही हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि मतलब आपको अल्लाह याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको सोचते नहीं है, हमने कभी इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद इन पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, अपने दिल का जो एक्चुअल स्टेट है उसको आप लिखें। अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से बना दे जो इस्लाम की ट्रू मीनिंग को समझते हैं, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना दे जो कुरान और सुन्ना को फॉलो करते हैं पूरी कमिटमेंट और पूरी डिवोशन के साथ। और अल्लाह ताला हमें इसमें उन लोगों में से बना दे जो इन क्लासेस से, इस क्लासेस से, जिस क्लासेस से भी, जरूरी नहीं कि मेरी क्लास हो, कि हम इन क्लासेस से अल्लाह ताला हमें बेनिफिट कराए और हमें अपने आप को मोल्ड कर दे, अपने आप को चेंज करे, ताकि हम ऐसे बन जाएं कि जैसे अल्लाह को पसंद हो। तो अल्लाह ताला हमको एक और चीज हम इसमें सीखते हैं कि हमारी मौत जो है, हमारी जिंदगी भी ईमान पर है 24/7, और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो, इन सबमिशन टू हिम। नॉट ओनली ईमान, बल्कि इन सबमिशन का मतलब है हमारे अमाल, ईमान प्लस अमाल। तो इंशाल्लाह ताला चलें अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड जुज़। थोड़ा सा टाइम है, पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, टाइम को ज़ाया नहीं करना है। चलिए, सेकंड जुज़ का नाम है सयकूल। सयकूल को हम स्टार्ट करते हैं। सयकूल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयकूलु सुफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सयकूलु, आप यकूलु का मतलब क्या है? ही सेज या ही विल से, ठीक है ना, ये मुदारे है। और मुदारे में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों आते हैं। आपको पता है, उन दोनों में से आपको कॉन्टेक्स्ट से पता लगना है कि ये प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना, ये हाल है या मुस्तकबिल है। तो जब स आ जाता है, आपको पहले भी बताया, जब स आ जाता है तो इट मेक्स इट क्लियर कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में है। और ज्यादातर स और सौफा में यही डिफरेंस होता है कि स इस ज्यादातर होता है अनकरीब के लिए होता है, सून के बारे में, सून इज गोइंग टू हैपन। सयकूलु, सून विल से, अन करीब कहेंगे। कौन कहेंगे? असुफहा। असुफहा के रूट लेटर्स आप पढ़ चुके हैं, सीन फाहा हमने पढ़ा था पीछे, सफिहा नफ्सहू, याद है? तो इस तरह अब है सुफहा, उसका फाइल है, और इट मींस द फुलिश वंस। द फुलिश वंस यानी जो बेवकूफ हैं, जो कम अकल हैं। आप कम अकल कह सकते हैं, विद लो IQ कह सकते हैं, जो भी जो फुलिश हैं, जो बेवकूफ हैं। और इसका सिंगुलर क्या है? सुफहा का सफी, सफीहुन, ठीक है ना। तो अनकरीब कहेंगे बेवकूफ, या सून will say the foolish people, क्या कहेंगे? मिनन नास, from the people, of the people, यानी लोगों में से जो फुलिश हैं, जो स्टूपिड हैं, जिनके जहन इतना काम नहीं करता, कम अकल है, वो कहेंगे मा वल्लाहुम। मा मीन्स व्हाट, यानी क्या या किसने। मा का ये भी आ सकता है वल्लाहुम। वल्ला आप पढ़ चुके हैं पहले भी, वल्ला युवल्ली तौलियतुन, यानी टू टर्न, फेर लेना। ये कौन सा है? फॉर्म 2 है। तो वो कहेंगे, वो आके कहेंगे लोगों में से जो फुलिश है, वो कहेंगे कि किस चीज ने या क्या ने इनको टर्न कर दिया। व्हाट टर्न्ड देम अवे, किस चीज ने या किसने इनको फेर दिया,
इनको फेर दिया अन क़िबलतिहिम, अन यानी फ्रॉम, क़िबलतिहिम इसके क़िबला आप सबको मालूम है, काफ बा लाम, क़िबला जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रेयर है। तो who turned them या what turned them, actually who नहीं लिखा है, what turned them from their direction of prayer, from their क़िबला, उनके क़िबला से किसने उनको फेर दिया, क्या चीज ने उनको फेर दिया, अल्लती कानू अलैहा, अल्लती which यानी that which, कानू they used to be, अलैहा means अला और हा upon it, यानी जिस पर वो थे, यानी वो क़िबला जिस पर वो थे उससे किसने उनको फेर दिया। और हा क्यों यूज हुआ, क्योंकि क़िबला फेमिनिन है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग ये कहेंगे तो कुल आप कह दीजिए उनसे, एक फेलुल अमर है, कमांड है, लिल्लाही लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, लिल्लाही बिलोंग्स टू अल्लाह या फॉर अल्लाह या इज अल्लाह, अल्लाह ही के लिए है, सबसे वैसे बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह ही के लिए है या इट फॉर अल्लाह, अल मशरिक़ वल मग़रिब यानी द ईस्ट एंड द वेस्ट, यहदी मैं यशाउ, यहदी हदा यहदी हिदायतुन, यहदी ही गाइड्स, वो हिदायत देते हैं, यानी अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, मैं यशाउ जिसको वो चाहे, whom he wills, शाआ यशाउ मशीअतन, शाआ यशाउ मशीअतन, और इसके रूट लेटर्स क्या है, शीन या हमजा, मैं यशाउ जिसको चाहे अल्लाह हिदायत देते हैं, इला सिरात मुस्तकीम, इला मीन टू या टूवर्ड्स यानी की तरफ, सिरात मुस्तकीम आपको मालूम है स्ट्रेट पाथ, द अपराइट पाथ, और मुस्तकीम का मतलब है जो ऊपर जाने वाला सीधा रास्ता, द पाथ स्ट्रेट भी कह सकते हैं, सीधा रास्ता भी कह सकते हैं, टूवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ, और मुस्तकीम क्या है, ये सिरात, सिरात है ना, उसके लिए सिफा है, और इसका मुस्तकीम का मस्तर क्या है, इस्तिकामतुन, इस्तिकामा, ठीक है। तो इस आया नंबर 142 की थोड़ी आई थिंक तफसीर इसकी लंबी हो जाएगी शायद, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके आए तो सबसे पहले वो किस तरफ किबले की तरफ मुंह करते थे, बैतुल मक़दिस की तरफ, पहला किबला क्या था, बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस की तरफ वो मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, और बैतुल मक़दिस का जेरूसलम में है। तो हालांकि उनका दिल ये चाहता था, he would have preferred, he liked, he wanted to, he really desired, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मक्के की तरफ मुंह करें जहां खाना काबा है, जहां अल्लाह का घर है। लेकिन ये क्या हुआ, 16 या 17 मंथ्स तक, डिफरेंट अकाउंट्स पे मैंने चेक किया कि दैट रिमेन द केस फॉर 16 to 17 मंथ्स, जो कि सहीहैन में है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, कि 16-17 महीने तक वो बैतुल मक़दिस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर एक दफा वो पहली दफा जब उन्होंने काबे की तरफ मुंह किया, उस वक्त सलातुल असर का टाइम था, सलातुल असर था, और उस वक्त वो कुछ लोग उनके साथ थे। जब उन्होंने पढ़ा और जब उन्होंने वो नमाज पढ़ाई तो उधर से कोई, उन्हीं में से जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उन लोगों में से एक दूसरे ग्रुप के सामने से गुजरे, जब वो अपने घर की तरफ जा रहे होंगे तो वो एक और मस्जिद के सामने से गुजरे, जहां पर उन्होंने उनको बताया कि आई बेयर विटनेस, कि मैं आपको बता रहा हूँ, शहादत दे रहा हूँ अल्लाह के सामने, कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है, और हम लोगों ने काबे की तरफ फेस किया, हम लोगों ने काबे की तरफ फेस किया, और हमने जेरूसलम की तरफ फेस नहीं किया। एक आदमी ने आके शहादत दी, एक आदमी ने आके उनको बताया, और सब लोग नमाज वहां पढ़ रहे थे, ड्यूरिंग द नमाज उन सब ने किया, विदाउट इंटरप्टिंग द प्रेयर, सब के सब टर्न हुए, और उन्होंने बैतुल मक़दिस की बजाय उन्होंने अपना रुख काबे की तरफ कर दिया। अब इसकी लंबी चौड़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अगर आपको दिल चाहता है आपको पता चले कैसे उन्होंने टर्न किया, कौन पहले मुड़ा कौन बाद में मुड़ा, आप जस्ट जाने चेंजिंग ऑफ द किबला, और आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल। हमारा लेसन ये है कि बगैर चूं चरा किए हुए, बगैर कोई हेजिटेट किए हुए, सब ने क्या किया, एकदम से जो नमाज पढ़ा रहे थे, जो इमाम थे, वो भी चेंज हो गए, और उनके पीछे तमाम लोग चेंज हो गए, उनके पीछे के इमाम एक साइड पे होते हैं, और जब उन्होंने चेंज किया तो बाकी सबको भी चेंज करना पड़ गया, रुख सब ने अपना बदल दिया, विदाउट द प्रेयर बीइंग इंटरप्टेड। किसी ने सलाम नहीं फेरा, किसी ने पूछा नहीं, ओह ये क्या हुआ, कैसे कह रहे हो, तुमने खुद देखा है, तुमने खुद पढ़ा है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ नहीं, ये सब के सब अचानक उन्होंने सुना और उन्होंने बगैर कुछ किए वो समिअना व अताना।
जब ये हुआ तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड कौन हो गए, सबसे ज्यादा खफा कौन हो गए, सबसे ज्यादा जूस क्यों खफा हो गए, क्योंकि वो जो थे वो बैतुल मक़दिस को वो चाहते थे कि वही काबा रहे। तो उसके बाद ये जब वो इतने ज्यादा खफा हो गए, डिसमेड हो गए, उदास हो गए, परेशान हो गए, तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। ये इसकी शान नुज़ूल है कि ये उन्होंने ये आयत नाजिल फरमाई और जूस को क्या नाम दिया, सुफहा, यानी ये बेवकूफ लोग हैं, कम अक्ल लोग हैं। और ये फर्स्ट रिप्लाई था, फर्स्ट आंसर था उन इग्नोरेंट लोगों के लिए जब वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। उनके जो नैरो अकल थी, कम लिमिटेड विजन थी उनकी, कम अकल थे, वो लोग क्या कर रहे थे, अनड्यू अटैचमेंट दे रहे थे फॉर्मेलिटीज को कि डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर ये है, लोकेलिटी ऑफ द प्रेयर ये होना चाहिए। तो जब ये चीजों पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और अल्लाह के हुक्म की उनको परवाह नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने अल्लाह को एक कहने रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया था, कन्फाइन करके रख दिया था इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आप अगर आप बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़ेंगे तो ही अल्लाह आपकी नमाजों को एक्सेप्ट करेगा। तो इस फजूल जो ऑब्जेक्शन था उनका, उसके बाद सबसे पहले अल्लाह ने ये कह दिया कि अल्लाह के लिए मशरिक भी और मगरिब भी, ऑल द डायरेक्शंस बिलोंग टू अल्लाह, चाहे वो ईस्ट है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो नॉर्थ है, चाहे वो साउथ है। और जब अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन ऑफ प्रेयर, एक किबला अल्लाह ताला ने मखसूस किया है, हमारे लिए बना दिया, कंफर्म कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सिर्फ उस डायरेक्शन में, ये हमें भी बिठा लेना अपने दिमाग में कि उस डायरेक्शन में सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह हर तरफ है। अल्लाह हमारे साथ नीचे नहीं है, हमें देख रहा है, हम मौजूद हमारे साथ, यानी कि उनको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह 7th हेवन पे है, ठीक है ना। तो लेकिन वो किसी डायरेक्शन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, महदूद नहीं है, कोई ऐसी चीज है। और डायरेक्शन इटसेल्फ जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, अनलेस के अल्लाह ने उसको मेरिट दी है। अल्लाह ने अगर उसको सेक्रेट बनाया, अल्लाह ने उसको मेरिट दिया, अल्लाह ने उसको ऊंचा स्टेटस दिया, तो ही काबा है। अब हजर अस्वद का भी आप देख लें, हजर अस्वद के लिए भी यही है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसको मैं कभी भी ना चूमता, लेकिन मेरे नबी ने चूमा है तो मैं चूम रहा हूँ। अब उस पत्थर को भी इतनी इंपॉर्टेंस है, उस काबे को भी इंपॉर्टेंस है, उस मक्के को भी इंपॉर्टेंस है, मदीने को भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दी इंपॉर्टेंस। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हैं कि ये कैलिफोर्निया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये अल्लाह ने इसको असाइन करना है, ऐसा कोई मेरिट, ये अल्लाह की प्रेरोगेटिव है। अल्लाह के वो किसी चीज को, किसी डायरेक्शन को, किसी भी जगह को वो डेजिग्नेट कर दें कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और वो जो डिसाइड करता है, वो हमें मालूम है कि अल्लाह हमारे लिए डिसाइड करता है, हमारी बेहतरी के लिए करता है। तो जो लोग जो कि ट्रू गाइडेंस जिनको मिली हुई है, जो कि इस बात को समझते हैं, वो इस लेवल से ऊपर, इस लिमिटेशन में नहीं फंसते, इस लेवल से ऊपर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो दीन है, इस्लाम है, ये यूनिवर्सल है और सब के लिए किबला एक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी तरफ देख के पढ़े, आप इधर पढ़ रहे हैं तो आप इस तरफ देख के पढ़े, नहीं, हर एक ही जगह पर हर एक ही जगह पे मुंह करके पढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि दीन जो है ये यूनिवर्सल है। तो उनके पास एक पॉइंट होना चाहिए जिसकी तरफ वो पॉइंट कर सके, एक जगह होनी चाहिए, है ना। किबले का मकसद ही है। तो इस तरह कुरान जो है वो क्लियरली डील करता है इस के ये जो शिद्दत थी जो कि जूस की कैंपेनिंग की थी, ये किस तरह मुसलमानों को अफेक्ट कर रही थी। लोग बहुत परेशान हो गए थे, लोग बहुत परेशान हो गए थे जब ये सब हो रहा था। तो कुरान ने, अल्लाह ताला ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है, आपने इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डाल के लोगों को समझाना है। एक और आयत कर लेते हैं इंशाल्लाह। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलता अल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अच्छी खासी लंबी आयत है, चलें कोशिश कर लेते हैं जितनी भी हो सके। वकज़ालिका, and like that, और इसी तरह, and like this, जअलनाकुम, जअल यजअलु जअलन यानी बनाना, जअलना we made, कुम यानी आपके लिए, we made you आपके लिए नहीं, आपको, वकज़ालिका जअलनाकुम और हमने बना दिया आपको, हमने आपको बनाया, we made you, ओके, प्लूरल, कि आपको प्लूरल क्या बनाया, आप सबको एक उम्मत, उम्मतन वसतन, उम्मतन एक नेशन, एक उम्मत, एक कौम, एक कम्युनिटी, वसतन, वसतन क्या कहते, वस्त हम नहीं कहते, वस्त
वस्त का मतलब है मिडल, यानी दरमियाना। हमने आपको एक दरमियाना नेशन, एक दरमियानी उम्मत बना के भेजा है, ली तकूनु, सो दैट यू विल बी, ताकि आप हो शुहदा, आप लोग विटनेसेस हो जाएं, आप लोग गवाह हो जाएं। विटनेसेस या गवाह, यानी प्लूरल है गवाह, ताकि आप गवाह बन जाएं अलन्नास, ओवर द पीपल, ओवर द मैनकाइंड, ओवर इंसानियत के ऊपर आप गवाह बन जाएं, लोगों के ऊपर आप गवाह बन जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने आपको एक वसत नेशन बना के भेजा है, उम्मत वसतन बना के भेजा है, ताकि आप गवाही दें, आप गवाह बन जाएं लोगों के ऊपर। वयकूना, एंड विल बी, और होंगे, अर रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अलैकुम, वो आपके ऊपर, शहीदा, एक गवाह होंगे। शुहदा प्लूरल, शाहिद सिंगुलर, और शहीदा दूसरा सेंस है, शहीदा अलैकुम शहीदा, यानी वो आपके ऊपर एक गवाह या एक शाहिद, एक विटनेस होंगे। तो कितना बड़ा रोल है, आप सोचें। वमा जअलनल क़िबलता लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। वमा, और नहीं, जअलना, हमने बनाया, एंड नॉट, वी मेड, अल क़िबला, यानी द क़िबला, यानी द डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर, और नहीं हमने बनाया, एंड नॉट वी मेड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर, अल्लती, अभी आपने पढ़ा, अल्लती, दैट विच, कुंता, यू वर अलैहा, you were upon it, you were on, you used to be on it, kunta, you used to be upon it, यानी जिस पर आप थे, जो क़िबला आप शुरू से आपने पढ़ रहे थे, उसको हमने वो कहते हैं कि हमने नहीं बनाया क़िबला उसको, इल्ला लिनअलमा, इल्ला एक्सेप्ट, यानी सिवाय, लिनअलमा, ली का मतलब है सो दैट, नअलमा, सो दैट वी मेक नोन, वी मेक एविडेंट, हम बता दें, हम जाहिर कर दें, कि यानी हम लोगों को बता दें, एक्सेप्ट या सो दैट, एक्सेप्ट, सो दैट, वी मेक नोन या वी मेक एविडेंट, और उर्दू में लिखें सिवाय इसलिए कि हम जाहिर कर दें या हम बता दें, मन यत्तबिउर रसूला, मन यानी कौन, हु, यत्तबिअ, हु फॉलोज, कौन फॉलो करता है, कौन पैरवी करता है, और रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन फॉलो करता है, मिम्मन, फ्रॉम द वन हु, उसमें से जो, यनक़लिबु अला अक़िबै, यनक़लिबु, इनक़लबा, यनक़लिबु, इनक़लाबुन, या आप पढ़ चुके हैं फॉर्म 7, इनक़लबा, यनक़लिबु, इनक़लाबुन, यानी कि फिर जाना, टू टर्न, इसीलिए इनक़लाब भी कहते हैं ना, इनक़लाब आ गया, एक चीज हट के दूसरी चीज आ गई, तो इनक़लबा, ही टर्न्स, ना, यनक़लिबु, ही टर्न्स बैक, वो फिर जाता है, अला, अपॉन या ऑन, अक़िबैही, अक़िबै, अक़िब का मतलब है एक, और डुअल का मतलब है अक़िबैन, अक़िबैन के साथ ही आ गया तो नून ड्रॉप हो गया और मुदाफ बन गया अक़िबैही, और अक़िब का मतलब क्या, हील, यानी हील्स, वो अपनी दोनों एड़ियों पर, अला अक़िबै, जो फिर जाता है अपनी दोनों एड़ियों पर, द वन हु टर्न्स बैक ऑन हिज टू हील्स, अक़िबैनी और अक़िबैही बन गया, ठीक है ना। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, व इन कानत, व इन, एंड इंडीड, कानत, इट वाज, और बेशक वो थी, वो क्या चीज थी या वो था, लकबीरतुन, लकबीरतुन यानी बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, इट वाज श्योरली बिग, it was surely difficult, आप क्या, it was surely a difficult test, wa in kanat lakabiratun, and surely it was a big test, या यकीनन एक भारी, एक मुश्किल इम्तिहान था, बेशक किसके लिए, इल्ला, एक्सेप्ट, उन लोगों के लिए बहुत भारी था, एक्सेप्ट, सिवाय उन लोगों के, अलल लजीना, फॉर दोज हु हदल्लाह, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, जिन्होंने अल्लाह से हिदायत नहीं दी, उन लोगों के लिए टेस्ट बहुत मुश्किल था कि किबला इस तरफ से उस तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी थी, अभी मैंने आपको बताया कि वो पढ़ते पढ़ते नमाज के दौरान जब उनको पता चला, और सब के सब मुड़ गए बगैर कुछ बोले, बगैर चुनो चरा के, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर गाइडेड बाय अल्लाह, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, वमा काना, एंड नॉट इज, और नहीं है, अल्लाह, वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, लियुदिया, कि वो टू लेट गो वेस्ट, आप इसको लियुदिया आप लिखें इंग्लिश में, टू लेट गो वेस्ट, कि वो जाया होने दे, कि वो जाया होने दे, अल्लाह ताला, और ये किससे आता है,
इसके रूट लेटर्स क्या है, दाद या आइन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अदवा युदीउ इदाअतुन, अदवा युदीउ इदाअतुन फॉर्म 4 है, किसी चीज को जाया करना। हम भी जाया कहते हैं, इसी तरह लिखते हैं ना, जाया करना, दाद से ही लिखते हैं ना, हम जाया बोलते हैं, वो दाद होता है। तो कि अल्लाह ताला आपके ईमान को, आपके अजर को वेस्ट नहीं करने वाले हैं, अल्लाह ताला आपके वेस्ट किसी भी काम को वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन नासी, विद द पीपल, लोगों के साथ, लोगों पर, टू द पीपल, लरऊफुर रहीम, श्योरली, ल मतलब श्योरली, रऊफ, रऊफ का मतलब है फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ काइंडनेस, यानी यकीनन अल्लाह ताला बहुत शफकत करने वाले हैं। इसका मस्दर क्या है, रऊफ, राफा, राफा यानी किसी पर तरस खाना, किसी पर पिटी करना, इसका ये मतलब है। तो अल्लाह ताला हम पे बहुत ज्यादा पिटी करने वाले, तरस खाने वाले, अल्लाह ताला हमारे अमाल को ज़ाया करने वाले नहीं है। और रहीम भी है, यानी हमेशा रहम करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो तफसीर आया नंबर 143, इसमें थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। कि वो लोग जो कि लिमिटेड इंटेलिजेंस वाले थे, कम अकल थे, वो उनको इस किबले की डायरेक्शन के चेंज करने में उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हुआ है, उनको कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रही थी। ऑल्दो क्या हुआ था कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेरूसलम जो है ऑफ द काबा, ये अमाउंटेड, यानी बाय द काबा, ऑफ द काबा नहीं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेरूसलम जो है उसको बाय द काबा, काबा ने जब उसको सब्स्टिट्यूट किया जेरूसलम के बैतुल मक़दिस को, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये था कि अब जो है बनी इसराइल जो है, उनकी जो एक सेंट्रल लीडरशिप रोल थी, उनका जो एक पोजीशन था, वर्ल्ड लीडरशिप रोल थी, वो रिप्लेस हो जाएगी। किससे? उनको रिमूव कर दिया जाएगा। रिप्लेस किससे हो जाएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। ये एक बहुत बड़ा इनको एक बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर समझ आती तो उनको पता चल जाता कि ये अल्लाह ताला उनको क्या बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने काबा जब चेंज किया तो बैतुल मक़दिस को हर से हटा के काबे, खाना काबा को कर दिया, किबला चेंज किया। उसका मतलब ये कि अब जो फोकस होगा, जैसे नहीं कहते हैं कि अब आपने किसी मुल्क में कैपिटल सिटी आप चेंज कर देते हैं, तो क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि फिर उस जगह से आप सारे जो है सब चीजें, अहकामात निकलती हैं, इंपॉर्टेंस उसको मिलती है। तो ये वर्ल्ड लीडरशिप का रोल जो था, जो बनी इसराइल के पास था, आपको पता ना, रब्बुल आलम नहीं, अलल आलमीन था उनका, वो अल्लाह ताला चेंज करने वाले हैं। और उन्होंने चेंज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सेंट्रल लीडरशिप रोल बना दी, और मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम उम्मत को। और ये लीडरशिप रोल जो है, इसने आगे जाके दुनिया में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना था। इट वॉज डेस्टिन्ड टू प्ले इन हिस्ट्री, और फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड करनी थी। और उसकी प्री रेक्विजिट ये होती है कि उनका अपना एक अड्डा होता, उनकी अपनी एक जगह होती, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती। तो इसलिए उनका एक्सक्लूसिव, उनका किबला अलग बनाया गया। ये रीजन था किबला बनाने का, वन ऑफ द रीजंस, नॉट ऑल द रीजन, वन ऑफ द रीजन ये था, फर्स्ट रीजन ये था कि उनका किबला बन जाए, ताकि वो उसी किबले को ना फॉलो करें जिसको जूस कर रहे थे। तो उनका अपना, इससे ये था कि उनकी एक किबला उनका अपना हो जाता, उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो जाती, उनकी शनाख्त हो जाती। ये मुसलमानों का किबला है, यू सी, मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये हमारा किबला है, खुद आप सोच लें, ये हमारी किताब है, हमारा कुरान है, हालांकि कुरान भी सबके लिए है। तो और फिर दूसरी बात ये कि ये है कि जो उम्मत जो पूरी की पूरी है, वो पूरी तौहीद पे आ जाएगी। तो और जब अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं उम्मतन वसतन, ये जो है नॉर्मली इसको क्या ट्रांसलेट किया जाता है? वसत उम्मत, या द कम्युनिटी ऑफ द मिडल वे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसकी मीनिंग इतनी रिच है कि उसकी इक्विवेलेंट कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज में नहीं मिल सकती। हम कहेंगे ना क्या है, मिडल वे है, नहीं, मिडल वे नहीं। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा ना कि जरूरत है हमारे लिए। इसका मतलब है वो कम्युनिटी, जब उम्मतन वसतन कहते हैं अल्लाह ताला, इसका मतलब ये वो कम्युनिटी है, वो नेशन है जिसने हर चीज में, अपने बिलीफ्स में भी, अपने एतकाद में भी, अपने आउटलुक में भी, अपनी पर्सपेक्टिव में भी, हर चीज में इट ऑक्यूपाइज द मिडल ग्राउंड। ठीक है ना, वो मिडल है, एक्सट्रीम पे नहीं है। इससे ये भी पता चलता है ये वो कम्युनिटी है जिसमें वो डिस्टिंग्विश्ड किस्म के लोग हैं जो कि किस पाथ को फॉलो करते हैं? जस्टिस, यानी कि इंसाफ, इक्विटी, इक्वालिटी या बराबरी, या बैलेंस्ड है वो, और मॉडरेशन, एक्सट्रीम पे नहीं है, मॉडरेट है। ये हमारे इस ग्रुप की खुसूसियात हैं। ये वो उम्मत है जिसको उम्मतन वसतन कहते हैं, मिडल ग्रुप, द ग्रुप इन द मिडल। ये वो ग्रुप है जिसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, किस चीज में? ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
वसतन का लफ्ज ये भी है कि सेंटर जो है वो हमारे पास है, सेंटर जो है हमारा वो इस्लाम का है, वो फेथ का है। इस वक्त जहां भी सेंटर है हमारा, इस वक्त काबा है, हम उसको सेंटर कहेंगे। और ये है कि इस सेंटर से, इस सेंट्रल पोजीशन से तमाम कौमों के साथ हमने फ्रेंडशिप रखनी है। किस चीज के बेसिस पे? राइचियसनेस, बिर के, अच्छाई कह लें, बिर कह लें, राइचियसनेस कह लें, एंड जस्टिस, इंसाफ के साथ। और किसी को भी, हम किसी को भी रॉन्ग नहीं कर सकते, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। ये हमारा रोल है मुसलमानों का, याद रखें। और ये वो कौम है कि जिसको एक हेल्दी और इक्विटेबल बैलेंस रखना है दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। कौन सी एक्सट्रीम्स? अब मैं एक और बात कर रही हूँ, वो एक्सट्रीम तो मैंने कह दिया, एक और एक्सट्रीम बिटवीन एसेसिटिज्म एंड मटीरियलिज्म। मादा परस्त नहीं हो जाना, मटीरियलिस्टिक नहीं हो जाना। एसेसिटिज्म यानी ज़ुहद में अपने आप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, घर बार को, फैमिली को छोड़ के एक कोने में जाके बैठ नहीं जाना है, ठीक है? जिस तरह लोग करते हैं ना कि बस हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें इस दुनिया में एंजॉय नहीं करना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, हमने आखिरत के लिए करना है। तो वो स्पिरिचुअल एसेसिटिज्म है, वो भी हमें नहीं अल्लाह सिखा रहा है। और मटीरियलिज्म के दुनिया में इतने खो जाओ कि बाकी सबको भूल जाओ। इट्स ब्यूटीफुल, उम्मतन वसतन को अगर आप पढ़ने जाए, इट्स ब्यूटीफुल कि इन दो चीजों से एक्सट्रीम के बदले क्या कहते हैं, हमें अल्लाह ताला ये सिखाया, हमें दीन में ये सिखाया कि जो हम जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जो बॉडी एंड सोल के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। ये नहीं कि बॉडी आपकी जाके कहीं पड़ी हुई है, सोल कहीं पड़ा हुआ है और इस तरह से और हम बैठे हुए एक मुराकबे में, वो सब नहीं है। ताकि हम दोनों को, अपनी बॉडी को भी, अपने सोल को भी, दोनों को सेटिस्फाई कर सकें। सिर्फ सोल को स्पिरिचुअल नरिशमेंट करते रहेंगे और साथ साथ हम बॉडी को कुछ भी नहीं देंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ नहीं, हर चीज को छोड़ते जाएंगे कि नहीं भाई अल्लाह हमें, तो दैट इज रॉन्ग। और अगर हम सिर्फ खाते पीते रहेंगे हर वक्त और हम स्पिरिट को छोड़ देंगे, वो भी रॉन्ग। अपनी रूह की ग़िज़ा भी चाहिए और जिस्म की ग़िज़ा भी चाहिए। इस फ्रेमवर्क में, इस बैलेंस और मॉडरेट फ्रेमवर्क में जितने भी हमारे टैलेंट्स हैं, हमारी एबिलिटीज हैं, हमारी सलाहियतें हैं, हमारी जो एप्टीट्यूड है, हमारे जो अमाल है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, उस सब को इसी तरह से नरिश करें। नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, नरिशमेंट ऑफ द सोल। और हम अपने आप को इस चीज के लिए इंकरेज करें कि हम सोसाइटी में अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सकें। तो एक मुस्लिम सोसाइटी, इससे ये पता चलता है कि इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी मॉडरेट। उसको बेज़ब्त तरीके से बिल्कुल अनडिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। एक मुसलमान को अपने घर को भी और अपने शहर को भी और अपनी फैमिली को भी और अपने इर्द गिर्द सबको ऐसे रखना है कि बाज़ाब्ता रखना है, कहते हैं ना कि डिसिप्लिन रखना है, अनडिसिप्लिन नहीं रखना और मॉडरेट तरीके से रखना है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक तो ये है, दूसरी चीज ये है, उसको ब्रूटल फोर्स से भी नहीं करना है कि नहीं भाई तुमने ये करना है, डंडा मार के किसी को हिजाब पहनाया जा रहा है, डंडा मार के पहनाया जा रहा है, ये सब नहीं करना है। तो ऐसे रेजिमेंटेड बाय ब्रूटल फोर्स ये भी नहीं करना है, ठीक है ना। इट शुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन। जब आप किसी को एक बात बोल रहे हैं कि ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है, आप ऐसा करें, आप उनको सिखाएं भी। जबकि इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज वो सब गारंटीड रखें, उसको प्रोटेक्टेड रखें, सोसाइटी को एंडेंजर्ड ना करें, ये सब बहुत जरूरी है। ये आप पढ़ेंगे कभी उम्मतन वसतन, बहुत इस पे लंबी लंबी आर्टिकल्स हैं और बहुत सारा, और ज्यादा मैं नहीं जा रही हूँ इसमें, बस यही बता रही हूँ कि इस आयत का एक और पर्पस ये था कि जो उम्मतन वसतन जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इट विल बी विटनेस बिफोर ऑल मैनकाइंड। हमारी जो उम्मत है वो तमाम मैनकाइंड के लिए विटनेस होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए विटनेस होंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम जब अल्लाह ताला से मिलेंगे, जब हम वहां से अल्लाह के आगे जाएंगे, जब हम अपनी हाजिरी देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि उन्होंने पैगाम पूरा का पूरा मुसलमानों को कम्युनिकेट कर दिया था और सिर्फ जुबानी नहीं किया था बल्कि ही हैड पुट इट इनटू प्रैक्टिस अपने अमाल से भी। और जितने भी उन्होंने टीचिंग्स और जो उन्होंने बिलीव्स और जो भी राइचियस कंडक्ट जो भी उन्होंने हमको सिखाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हम मुसलमान जो है हम उसको समझ भी रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिहाफ पे अब हम उस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हम भी विटनेस होंगे बिफोर ऑल ऑफ मैनकाइंड। हम भी ये कह सकें, हम भी इस काबिल हो जाए, हम कह सकें कि हमने भी अपनी पूरी कोशिश की, वी स्पेयर्ड नो एफर्ट इन कम्युनिकेटिंग टू मैनकाइंड, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और हमने अपनी जिंदगी में भी उसको एग्जाम्प्लीफाई किया। ये हम
हम सिर्फ बोलते हुए नहीं थे, हम बोल भी रहे थे, कर भी रहे थे, हमारा कॉन्डक्ट, हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस भी थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी इंसानियत के सामने खड़े होके और हमें ये विटनेस देना पड़ेगा। हैवी, सिर्फ जिम्मेदारी एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हैवी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने इसको पूरा किया, ये हम तो, मुझे और आपको, हम सब के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरे मुसलमानों के लिए हम एक गाइडेंस करें। हम पूरे मुसलमान, पूरी इंसानियत के लिए, हम मुसलमान तमाम इंसानियत के लिए गाइडेंस उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, उनको एजुकेशन भी दें। अगर हम इसमें फेल हो जाएंगे तो हमसे पूछ होगी, इसको हमने सीरियस लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम इस पोजीशन में आते नहीं हैं, हम सिखाना नहीं चाहते, हम कहते हैं सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, और हमने जो अल्लाह ने हमारे लिए रिलीजन चूज किया उसके बदले हम दूसरे सोशल, पॉलिटिकल फिलॉसफीज में और तमाम सिस्टम्स में और घुस के और उनको हम अडॉप्ट करने लग गए। और एक लास्ट पॉइंट, मेरा ख्याल एक पॉइंट कह लूं उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। अभी तो काफी ज्यादा है, चले लास्ट पॉइंट फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी मैंने लिखा था एक वन मोर पर्पस ऑफ द चेंज ऑफ किबला, इंशाल्लाह चलें नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। वील स्टार्ट फ्रॉम हियर जहां हमने मिडिल में छोड़ा था। ज्यादा देर मैं नहीं करना चाहती किसी का टाइम, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बोल दें, वरना फिर विल फिनिश हियर। चले, मुझे लगता है कोई सवाल नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, क्योंकि मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ जो इतने जरूरी पॉइंट्स हैं, और साथ साथ मैं वक्त से ज्यादा आगे भी नहीं जाना चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। वइयाकुम वइयाकुम। See you inshallah Tuesday. इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum.